In this lecture, we shall define the Fourier transformation, Fourier cosine transformation, and Fourier sine transformation. And we solve some problems based on Fourier sine, Fourier cosine transformation, and Fourier transformation. So first question arises, why we need Fourier transformation? So basically your Fourier transformation has many applications in any field of physical science that uses sinusoidal waves. राइट, जहाँ भी आपकी साइनोसोडल वेव की एप्लीकेशन होती हैं, देन वी अप्लाई आइदर फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन such as engineering in physics, applied mathematics and chemistry will make use of Fourier series and Fourier transformations. And you know what are the meaning of Fourier series and Fourier transformation. So first of all, Fourier series आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, पढ़ी है ना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में? यस सर। क्या थी, कुछ आइडिया है उसके बारे में अभी? फूरियर सीरीज की डेफिनेशन क्या थी? किन कंडीशंस में आप किसी फंक्शन को फूरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे थे? If your function is a periodic function with some period, then you can express your function in terms of Fourier series over the whole real line. ऐसी कुछ कंडीशंस थी. So let us recall what was that condition. So if you remember, if ft is a periodic function, then ft can be expressed as a Fourier series as follows: ft equals to a naught upon 2 plus summation n equals to 1 to infinity a n cos of nt plus b n sin of nt, where a naught, a n, and b n are the Fourier coefficients which are given by these integrals. A n equals to 1 upon pi integration from minus pi to plus pi ft cos of nt, and bn equals to 1 upon pi integration from minus pi to plus pi ft sin nt dt. And you can also define similarly a naught equals to क्या था, कुछ आइडिया है? माइनस पाई टू प्लस पाई ft dt, right? Which is 1 upon pi, sorry. So this is the definition of the Fourier series. It means यदि आपका कोई फंक्शन यदि पीरियोडिक फंक्शन है, then you can express your function in terms of Fourier series. Fourier series का मतलब either in terms of cosine or sine function form. It depends कि आपका फंक्शन यदि odd function है, then your function can be expressed as a sinusoidal wave. If your function is an even function, then you can express your function as a cosine function form. Right? So this is the definition of the Fourier series. Now suppose if your function is not a periodic function, यहाँ पे condition क्या थी? ft is a periodic function. But suppose if your function is not a periodic function, then we cannot express our function ft in terms of Fourier series, but we can express our function in terms of Fourier integrals form. यदि आपका फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं है तो हम उसको फूरियर सीरीज की फॉर्म में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट वी कैन एक्सप्रेस our function in terms of Fourier integrals, right? So if ft is not a periodic function, then it cannot be represented by a Fourier series over the entire real line. However, we may be able to represent ft in terms of integral form. और जो ये इंटीग्रल फॉर्म्स हैं ये आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, जो भी आपकी फोरियर एनालिसिस की बुक होगी वहां पे यू कैन इजीली सी द इंटीग्रल फॉर्म्स of the function which is not periodic. So in this lecture we deal with the Fourier transformations only. हमारा फोकस किस पे रहेगा? only for the Fourier transforms only, not on Fourier integrals, right? So we shall study about the Fourier transformation only. And here the Fourier transformation is the mathematical technique that transform a function of time ft to a function of frequency f omega.
इट मींस आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, किसी भी टाइम टी का जो फंक्शन है या स्पेस का जो फंक्शन है उसको फ्रीक्वेंसी कर देता है. You can see it from this definition. Integrable function over the interval minus function is denoted by this symbol. Fourier transformation का symbol है and is defined as 1 upon root of 2 pi infinity to plus infinity ft e raised power minus iota omega t. So now if you remember what is the kernel of the Laplace transformation, आपको लाप्लास की डेफिनेशन याद होगी तो वहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल क्या था? मैंने अपने को फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दैट इज इक्वल्स टू 0 to infinity e raised power minus st ft dt. So it means this function e raised power minus st is the kernel of the Laplace transformation. So same thing is here. E raised power minus iota omega t is the kernel of the Fourier transformation. Right? Laplace की इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट्स क्या थी? 0 से इन्फिनिटी थी और यहाँ पे आपकी लिमिट्स क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है. Right? So remember this definition. If your function is piecewise continuous and absolutely integrable, यहाँ पे absolutely integrable का मतलब क्या है? It means integration from minus infinity to plus infinity mod of ft dt exist. ठीक है? Absolutely integrity means absolute value of ft है, उसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप करते हैं तो उसकी इंटीग्रल की उस वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, या दैट इंटीग्रल मस्ट बी कन्वर्जेंट. राइट? So this is our definition of the Fourier transformation. 1 upon root of 2 pi times integration from minus infinity to plus infinity ft e raised power minus iota omega t dt. And if this integral exists, then it is a function of omega which is represented by capital F omega, where omega denotes the frequency of the transformation. Right? So note down this definition. So basically your Fourier transform the function of the time t into the function of frequency. Right? Now we define the inverse Fourier transformation. If this integral converges, it means minus infinity to plus infinity, capital F omega d omega, where capital F omega is your Fourier transformation basically. Then we define the inverse Fourier transformation of capital F omega as 1 upon root of 2 pi integration from minus infinity to plus infinity capital F omega e raised power iota omega t. Now if you compare this definition with the previous definition, वहां पे क्या था आपके पास? डेफिनेशन इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी बेटा अभी आ रही है आवाज? यस सर. क्लियर है? यस All सर. right. So
नाउ यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आपका कर्नल क्या है, e की पावर माइनस आईटा ओमेगा टी है। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपका कर्नल क्या है, e की पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी है विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। If this integral exists, then it is a function of time t, which is our actual function. Alright? So ये आपको ये definition apply करनी है where I stand for the square root of minus one. ठीक है, तो ये आपको definition पता होनी चाहिए कि what is the definition of the Fourier transformation. But some conditions, your function must be a piecewise continuous and absolutely integrable over the whole real axis, right? तभी आप किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। Condition is that your function must be a piecewise continuous and absolutely integrable over the whole real axis. So ये दोनों definitions हो गई आपकी यहाँ पे। Now, as we know that every function can be expressed as a summation of even and odd function. किसी भी फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Suppose this is your given function ft. Now this can be written as a summation of even and odd function. If your function is an even function, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहां से बेटा, इफ योर फंक्शन एफ इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू एफ टी, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ द इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ टी। So you can express your function ft as a summation of even and odd portion. ये हमारा even portion हो जाएगा, ये हमारा odd portion हो जाएगा, ठीक है। So hence a Fourier transformation can always be expressed in terms of the Fourier cosine transformation and Fourier sine transformation, राइट। तो आपका यदि कोई जब हम किसी फंक्शन को इवन और ऑड फंक्शन की फॉर्म, ऑड पोर्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वी कैन एक्सप्रेस अवर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द फूरियर कोसाइन एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। Square root of root 2 upon pi integration from 0 to infinity ft cos of omega t dt, and it is represented by fc omega. ऑलराइट, ये आपकी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। इसमें आपकी लिमिट्स क्या है, 0 से इन्फिनिटी है इंटीग्रेशन की, और बाहर जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एफ टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी। राइट, ये आपकी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। सिमिलरली योर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ टी साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस ओमेगा। ऑलराइट, बट if your function is an even function, here we have mentioned that if your function ft is an even function, then your Fourier cosine transformation and Fourier transformation are same. It means Fourier transformation of ft is equals to the Fourier cosine transformation of the function. All right, if your function is an even function, then Fourier transformation of that function ft is equal to the Fourier cosine transformation of ft. You can easily verify this one. आपकी Fourier transformation की definition क्या है, ft equals to 1 upon square root of 2 pi minus infinity to plus infinity e raised पर माइनस आयोटा ओमेगा टी एफ टी डी टी। ये आपकी डेफिनेशन है, यस और नो? यस सर।
Now we can express this e raised power minus iota omega t in terms of cos of omega t and sin of omega t. So you can write it as 1 upon root of 2 pi integration from minus infinity to plus infinity cos of omega t minus iota sin of omega t मल्टीप्लाई बाई एफ टी डी टी. कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? एनी डाउट? हमने ई रेज पर माइनस आयोटा ओमेगा टी को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया? कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस टाइम्स आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाई विद द फंक्शन एफ टी डी टी. यस और नो? यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर. ऑलराइट. नाउ suppose we are assuming that our function f t is an even function. हमारा function f t क्या है? Even function है. So if you remember the property of the even and odd functions, integral form में क्या conditions थी? Integration from minus a to a fx dx. This is equals to 0 if f is even or odd function. It is odd function and it is 2 times 0 to a f dx if f is even function. यदि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे fx की जगह आप x रख देते हैं, देन वी नो दैट x इज एन ऑड फंक्शन. x का आप इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे और ये लिमिट्स लगाते हैं माइनस a से प्लस a के बीच में. If you simplify, then what will be the answer? यदि आपका fx क्या है? ऑड फंक्शन है और आप इसको माइनस a से प्लस a के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, देन व्हाट विल बी द आंसर? 0. 0. It means this property is satisfied. But if your function is an even function, it means suppose fx equals to x square, then what will be the answer? 2 into integration from 0 to a fx dx. dx. It means it is correct now. Now we are assuming that ft is an even function, and we know that cos of omega t is an even function. ये even function है आपका? Yes sir. Because we know that cos of minus थीटा किसके इक्वल होता है? Cos of minus t मान लीजिए, that is equals to cos of t, and we know that sin is also a odd function. ठीक है. साइन आपका ऑड फंक्शन होता है, cos आपका इवन फंक्शन होता है. And so f is even function and cos is even function. The product will be a even function. Yes or no? cos आपका क्या इवन फंक्शन है? इवन का मतलब t की जगह आपने माइनस टी पुट किया और आपने वो डेफिनेशन अप्लाई की है for minus t equals to ft. So cos of omega t is an even function and ft is an even function. So therefore their product is also an even function. ठीक है. So you apply this property is 2 times integration from 0 to a f dx. But sin of omega t is an odd function and ft is an even function. So therefore product is an odd function. So therefore the integration value corresponding to this term goes to 0. So we left only with this term, first term, which is 1 upon root of 2 pi integration from 0 to infinity cos of omega t f t dt. यहां तक किसी को डाउट हो तो बताएं बेटा. No sir. Because we assume that our function f t is an even function, तो हमारे पास में ओनली फर्स्ट टर्म रहेगी, सेकेंड टर्म आपकी 0 बन जाएगी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ऑलराइट. बिकॉज यहाँ पे आपके लिमिट्स क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है. ऑलराइट. इट मीन्स आपका लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन दोनों कवर हो रहे हैं उसमें. सो देयरफॉर वी लेफ्ट विद दिस इंटीग्रल वैल्यू 1 upon root of 2 pi. Sorry, this is minus infinity here. This is minus infinity. Right? So 1 upon root of 2 pi minus infinity to plus infinity cos of omega t f t dt. Now if we apply this theorem,
If your function is even function, then it is 2 times 0 to a f dx. So you can write this as, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 upon root of 2 pi integration from 0 to infinity cos of omega t f t dt. Yes or no? Yes, sir. All right. Now if we simplify, then we get this result. इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर जो कोफिशिएंट है दैट इज √2/पाई बन जाएगा आपका, Yes, sir. और आपका इंटीग्रेशन रह जाएगा 0 to infinity एफ टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू दी ओवर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इफ योर फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, then your Fourier transformation of the function ft is equals to the Fourier cosine transformation of the function. It means this property holds. Condition is that your function must be an even function. यदि आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ टी. क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? No, sir. All right, now so this is our Fourier cosine transformation of the given function ft. All right, and we can easily define its Fourier inverse Fourier cosine transformation. Ft equals to √2/pi integration from 0 to infinity fc omega cos of omega t d omega. इट मीन जो हमारे पास एफ टी था फूरियर के अंदर, इनवर्स में क्या बन जाएगा, एफ सी ओमेगा बन जाएगा जो भी आपका, बट इंटीग्रेशन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू क्या था, टाइम था आपके पास में. ठीक है, सो दिस इज नाउ सपोज योर फंक्शन एफ इज एन ऑड फंक्शन, देन योर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी. नाउ यू कैन इजीली वेरीफाई दिस वन. यदि आपका फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो ओड फंक्शन है, तो उस केस में आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी. यू कैन इजीली वेरीफाई फ्रॉम दिस थ्योरम जो हमने यहाँ पे प्रूव किया. राइट, नाउ हियर यू कैन सी दैट योर एफ टी इज एन ऑड फंक्शन एंड वी नो दैट कॉस ऑफ ओमेगा टी इज एन इवन फंक्शन. सो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, cos ओमेगा टी आपका इवन फंक्शन है, एफ टी आपका ओड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट आपका ओड फंक्शन बनेगा. सो देयरफॉर दिस टर्म गोज टू 0, और ये वाली टर्म है इसकी कुछ नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, और माइनस आयोटा टाइम्स मल्टीप्लाई में है. सो माइनस आयोटा टाइम्स इसको आप क्या ले सकते हैं, यहां से आपका जो रिजल्ट मिलेगा आपको दैट इज माइनस आयोटा √2/पाई. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन की हम बात कर रहे हैं ना, 0 to infinity ft sin of omega t dt. ठीक है, so this result again true. If your function is an odd function, then its Fourier transformation is equals to minus iota times Fourier sine transformation of the given function ft. ठीक है, और ये Fourier sine transformation की आपकी डेफिनेशन है √2/पाई integration from 0 to infinity ft sine of omega t, which is equals to the function of omega and represented by this f sine omega, fs omega. ठीक है, सो तीनों डेफिनेशन क्लियर है आपको, कोई डाउट किसी को? एक बार आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं अगेन. दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. If your function is piecewise continuous and absolutely integrable, then Fourier transformation is given by, this is your coefficient of the transformation 1/√2 pi. कुछ बुक्स में डिफरेंट हो सकता है, बट वी आर अज्यूमिंग that is 1/√2 pi integration from minus infinity to plus infinity ft e raised power minus iota omega t dt, and here e raised power minus iota omega t is the kernel of the फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये आपकी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है.
and it is represented by capital F omega, and its inverse is defined by this equation number 3. ठीक है. Similarly, your Fourier cosine transformation is defined by this definition. यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, √2/पाई हो जाएगा. इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी. फूरियर के केस में क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, बट यहाँ पे क्या है 0 से इन्फिनिटी है. ft cos of omega t dt, that is our Fourier cosine transformation, and it is represented by fc omega. इनवर्स की डेफिनेशन सिमिलरली √2/पाई 0 to infinity integration fc omega cos of omega t, but integration with respect to frequency omega. Similarly, Fourier sine transformation, it means √2/pi times integration from 0 to infinity ft sine of omega t dt equals to fs omega, and its inverse is defined by this relation number 7, which is √2/pi integration from 0 to infinity fs omega sin omega t d omega. क्लियर. तीनों डेफिनेशंस में कहीं कोई डाउट? हेलो. No, sir, no doubt. Hola. So let us see the example based on this one. So find the Fourier transformation of this function, constant function, within the given limits. Root mod of t is less than 1. Write the inverse function also for inverse transformation. So आपके पास में क्या है, constant function given है. So graphically you can see mod of t is less than 1. So you can see in this way. This is -1. This is +1. And so its value is 1 in between this -1 to +1. Right? So we need to find the value of the Fourier transformation for the given constant function in the interval mod of t is less than 1. So let us apply the definition of the Fourier transformation. आपकी definition क्या है? Integration 1/√2 integration from -infinity to plus infinity ft e raised per minus iota omega t dt. यही आपकी डेफिनेशन है. ठीक है. Yes, sir. हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो किस इंटरवल में डिफाइन है? mod of t is less than 1. इट मींस -1 से +1 के बीच में डिफाइन है. अदर वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. सो लेट अस यूज द गिवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? -1 to +1 एंड ft इक्वल्स टू 1 डॉट. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है. सो दिस इज 1 टाइम्स e रेज़ पर माइनस आयोटा ओमेगा टी dt. कोई डाउट बेटा यहां से यहां तक? No, sir. Now we can easily integrate this exponential e raised power minus iota omega t का with respect to t इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा ये. सो दैट इज -1/√2 1 आयोटा ओमेगा e raised पर माइनस आयोटा ओमेगा t with limits -1 to +1. यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं then you will get √2/pi sin omega upon omega. सिंप्लीफाई कीजिए आप इसको. यहाँ पे आपको क्या करना है? t की लोअर लिमिट t इक्वल्स टू -1 से अपर लिमिट t इक्वल्स टू +1 है. ठीक है. तो यहाँ पे यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉरगेट अबाउट द कोफिशिएंट्स, ये बन जाएगा e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस e की पावर प्लस आयोटा ओमेगा. ऑलराइट. एंड इफ यू रिमेंबर sin x किसके इक्वल होता है? e रेज़ पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2 आयोटा. होता कि नहीं होता? Yes, sir. एंड cos x किसके इक्वल होता है?
e की पावर आयोटा एक्स, बताइए, plus e to the power minus iota x डिवाइड बाई, 2. वेरी गुड बेटा. So if we apply this result, then we get root 2 upon pi sine omega upon omega. Now this is the function of the frequency omega. ये क्या है? सिंपली ओमेगा का फंक्शन है, और हमारा जो गिवन फंक्शन था वो टाइम टी का फंक्शन है. सो राइट, सो इट मीन्स यदि आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन गिवन है विद इन द इंटरवल मोड ऑफ टी इज लेस देन 1, देन इट्स Fourier transformation is given by root 2 upon pi sin omega upon omega. Alright, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. Alright, now you can easily find the inverse transformation of this also by using the definition. आपकी definition क्या है inverse की? Inverse की definition आपकी 1 upon root of 2 pi integration from minus infinity to plus infinity this f omega. So it means root 2 upon pi sin of omega divided by omega e रेस पावर, यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा ओमेगा टी डी ओमेगा. ठीक है, यदि आप इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट एफ टी इक्वल्स टू 1 विद इन द इंटरवल मोड ऑफ टी इज लेस देन 1. और डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो राइट एफ इनवर्स ऑफ एफ ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट फंक्शन जो भी हमारे पास, बिकॉज वी नो दैट एफ इनवर्स of f omega equals to given function f t. ये हमारी डेफिनेशन है, you can see from this definition. This one, f inverse of f omega equals to f t, which is equals to 1 upon root of 2 pi integration of minus infinity plus infinity f of omega e की पावर आइटा ओमेगा t d ओमेगा. ठीक है, सो ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं. ठीक है, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल्स टू e के पावर माइनस ए टी विथ t ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, एंड ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन. यहां से आपको कंडीशंस क्या है? t ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0. इट मींस राइट हाफ प्लेन के अंदर ही आपका फंक्शन डिफाइन है, लेफ्ट हाफ में उसकी वैल्यूज आपको 0 की तरह अज्यूम करनी है. सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन, दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एफ टी ई रेस पर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी. अब हम यहाँ पे एफ टी की वैल्यू पुट करेंगे. एफ टी क्या गिवन है? e raised power minus at for t greater than 0, alright, with a greater than 0. तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised power minus at e raised power minus iota omega t dt. यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? No, sir. Alright, now this is our exponential function and you can easily solve this one. कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन. इसको आप क्या लिख सकते हैं? ई रेस पावर माइनस ऑफ ए प्लस आयोटा ओमेगा टी. यस और नो? Yes, sir. अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी. तो बताइए आपके इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ये तो आपका कांस्टेंट है ना? सो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? माइनस 1 अपॉन ए प्लस आयोटा ओमेगा टाइम्स ई की पावर माइनस आयोटा, सॉरी ए प्लस आयोटा ओमेगा टी. ठीक है, ई की पावर माइनस ए एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है? माइनस 1 अपॉन ए ई की पावर माइनस ए एक्स. यस और नो? Yes, sir. सेम थिंग इज हियर. यहाँ पे ए की जगह क्या बन जाएगा? ए प्लस आयोटा ओमेगा बन जाएगा. अब हम यहाँ पे लिमिट्स टी की लगाएंगे. लिमिट टी की लिमिट्स क्या होगी? 0 से
इन्फिनिटी होगी, राइट। सो दिस वन, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, तो लोअर लिमिट आपकी t इक्वल टू 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। सो अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, Yes, sir. एंड e की पावर माइनस 0 कितना होता है, 1. 1। So after simplification, we get 1 upon root of 2 pi times 1 upon a plus iota omega. Alright, this is our required Fourier transformation for the given function e की power minus at for t greater than 0 with a greater than 0. क्या इस फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या हम इसको, e raised power minus at सोचिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हमारे पास कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, a ग्रेटर देन 0, एंड इफ यू रिमेंबर u ऑफ at की डेफिनेशन क्या थी, कुछ याद है? Sir, 0 if t is less than a and 1 if t is greater than a. t ग्रेटर देन a, वेरी गुड बेटा। सो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा फंक्शन गिवन था, विद इन दिस कंडीशन कैन वी राइट इन दिस फॉर्म? Yes, sir. यस। वाई बेटा बता सकते हैं कोई रीजन इसका? ये दोनों Sir, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें? yes, sir. So we can express this function in terms of unit step function. So, and if we find the inverse of this one, then we get e raised power minus at with t greater than 0, a greater than 0. So it means Fourier transformation of this function u of at e की power minus at is equals to 1 upon root of 2 pi times 1 upon a plus iota omega. ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? बिकॉज हमने e की पावर माइनस at को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कंडीशंस है इनका यूज करते हुए हमने जो हमारा फंक्शन e की पावर माइनस at को किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय यूनिट स्टेप फंक्शन। ऑलराइट, सो Fourier transformation of u of at e raised power minus at equals to 1 upon root of 2 pi times 1 upon a plus iota omega, where u of at is the unit step function. Clear? कोई डाउट इसमें कहीं किसी को? भाई बेसिकली आपका ये फंक्शन क्या है, ft तो है, और इसका हमने फूरियर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू दिस नंबर। और ये हमारा जो ft गिवन था विद इन द कंडीशन t ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, e की पावर माइनस at u ऑफ at। तो कहाँ कोई डाउट है इसमें? राइट, सो यू कैन राइट the Fourier transformation of e की power minus at u of at equals to 1 upon root of 2 pi times 1 upon a plus iota omega. Clear? Yes, sir. And its inverse Fourier transformation is given by the actual function, that is e की power minus at. इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं by using the definition of the inverse Fourier transformation. Now next example is find the Fourier transformation of ft equals to
e raised power minus a mod of t within the limits minus infinity to plus infinity for a greater than 0, and find the inverse of the function also. यह इसका हमको फूरियर निकालना है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई दिस फंक्शन. इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? आपका ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? When a is less than 0. No, it is already given a greater than 0. So don't think about a less than 0. It is already written a greater than 0. So think about t only. So t equals to 0 पे होगा या कि नहीं होगा? ये देखो, t equals to 0 है. t equals to 0 के लेस में इसकी वैल्यू क्या बनेगी? t equals to 0 है, इसके लेफ्ट में इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताइए? 0 है, इसके लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी? e की पावर at बनेगी कि नहीं बनेगी? मोड t को आप क्या लिख सकते हैं? That is minus t for t less than 0, and it is plus t for t greater than 0. Yes or no? Yes, sir. So same thing is here. ये mod of t है, लेफ्ट में ये mod of t क्या बन जाएगा? माइनस t बन जाएगा. सो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और t के यहाँ पे t इक्वल टू 0 के राइट में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? e की पावर माइनस at. Yes, sir. ऑलराइट, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. Alright, so first of all we simplify the given function, which can be written as e की power at for t less than 0, and it is e की power minus at for t greater than 0, and we have already solved for this one. Previous example देखिए आप लोग, e की power minus at for t greater than 0 and a greater than 0. प्रॉब्लम में यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, that is a greater than 0. So by the application of the previous example, its Fourier transformation क्या होगा? It means आपका जो Fourier transformation कितना है? याद रखना पड़ेगा बेटा ये रिजल्ट्स आपको, यही तो है 1/√2 पाई 1/a प्लस आयोटा ओमेगा, यही है ना? Yes, sir. ठीक है, अब आपको इसका रिजल्ट पता है, केवल आपको ये वाली वैल्यू चेक करनी है विच इज लेस देन 0 के लिए. इट मीन्स आपकी माइनस इनफिनिटी टू 0 के लिए चेक करना है. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम वी विल डिस्कस अबाउट दिस पार्ट ओनली. इट मीन्स माइनस इनफिनिटी टू 0 e की पावर at e रेज़ पावर माइनस आयोटा ओमेगा t dt, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो वी कैन राइट दिस एज, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या माइनस इन्फिनिटी है, तो यू राइट इट दैट एज a माइनस आयोटा ओमेगा t. यस और नो? अब आपके पास में दो ऑप्शन है, इसको या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको या इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा ओमेगा t. Sorry, just a minute. Minus इसको दूसरी फॉर्म क्या बन आप लिख सकते हैं, ई रेज पर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ए टी. नाउ हाँ यस, ये वाला जो फॉर्म है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई रेज पर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ए टाइम्स टी, और एक रख सकते हैं ई रेज पर प्लस टाइम्स ए माइनस आयोटा ओमेगा टी. यस और नो? Yes, sir. इसको आप e की पावर प्लस में भी लिख सकते हैं और e की पावर माइनस में भी लिख सकते हैं. यहाँ पे हम इसको e की पावर प्लस में लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज वी नो दैट e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी 0,
बट ई रेज पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम ये वाला कंडीशन यूज नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वी वांट टू यूज दिस कंडीशन। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ई की पावर प्लस वाली फॉर्म लेंगे, ठीक है। सो कीप इन माइंड दिस कंडीशन, ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। सो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज पावर ए माइनस आयोटा ओमेगा टी। कुछ स्टूडेंट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट यदि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे टी की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो आपके पास में ये वाली कंडीशन बन जाएगी जहां पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमको ये वाली कंडीशन नहीं लेनी है इसके अंदर। सो वी राइट इट एज ई रेज पावर पॉजिटिव है ए माइनस आयोटा ओमेगा टाइम्स टी, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, 1/a माइनस आयोटा ओमेगा ई रेज पावर a माइनस आयोटा ओमेगा टी, लोअर लिमिट माइनस टी, अपर लिमिट 0। सो अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू 1 रहेगी, लोअर लिमिट पे 0 बनेगी। सो वी लेफ्ट विद 1/√2 पाई 1/a माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। तो यहां से हमको मिलेगा 1/√2 पाई 1/a माइनस आयोटा ओमेगा, और यहां से हमको ऑलरेडी मिल कितना है 1/√2 पाई 1/a प्लस आयोटा ओमेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। देखिए इसमें कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग। No, sir. राइट, सो रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो। ई की पावर माइनस ए टी का लैप्लस सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1/√2 पाई टाइम्स 1/a प्लस आयोटा ओमेगा, एंड ई की पावर माइनस ए टाइम्स मॉड ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या है √2 पाई a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ऑलराइट, now next we find the inverse. So you can easily find the inverse of this one, and inverse of this equals to actual function ft, because we didn't know that f inverse of f omega is equals to ft. So हमारे पास में ft क्या है, e की पावर माइनस a mod of t है। Now find the Fourier transformation of this function e की power minus at square with a greater than 0, and also find the inverse transformation. Same concept हम use करेंगे। So by the definition of the Fourier transformation, 1/√2 pi integration minus to plus infinity ft e की power minus iota omega t dt. Alright, this is our standard definition. अब हम यहाँ पे एफ टी की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, ई की पावर माइनस ए टी स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी। अब हमारे पास इसमें क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे, ई की पावर माइनस कॉमन ले लेंगे आप ए टी स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा टी डी टी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बेटा? No, sir. राइट, हमारे पास में ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर ए टी स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा टी, अब इसको हम क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए टी स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा टी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन ले लीजिए आप पहले, है ना। तो ए टी स्क्वायर है प्लस आयोटा ओमेगा टी, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो टेक आउट ए एज ए कॉमन फर्स्ट, सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा अपॉन ए टी, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ऐड कर दिया और इसी से आपने माइनस कर दिया, प्लस माइनस, ठीक है। बिकॉज आपके पास में ये फर्स्ट टर्म है, इस तरह से सोचिए आप, a प्लस बी का स्क्वायर है एक तरह से, है ना। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि सोचेंगे तो हमारे पास में ये ए स्क्वायर की तरह है, ये ए बी की तरह है, और ये हमारे पास में
बी स्क्वायर की तरह है, बिकॉज यहाँ पे आयोटा प्रेजेंट है ना, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। -1. Yes, sir. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी टेक इस नेगेटिव वाली टर्म। सो ये हमारे पास में एक तरह से ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी की तरह हो जाएगा। अब उसको 2a भी हम एडजस्ट कर देंगे बाद में, और ये बी स्क्वायर की तरह हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू t है, तो b की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ओमेगा अपॉन 2a, बिकॉज ओमेगा अपॉन 2a, आयोटा तो आपका साथ में है ही, आयोटा ओमेगा भी रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2a भी है ना, और दैट इज इक्वल टू बी, ये मान लीजिए आप, और a की जगह कितना आ जाएगा, t आ जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा टी अपॉन ए माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यदि फर्स्ट 3 टर्म्स लेते हैं तो ये बन जाएगी टी प्लस आयोटा ओमेगा अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स जो आपकी हैं यहाँ पे, दैट बिकम्स टी प्लस आयोटा ओमेगा अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये सुनो, फर्स्ट 3 टर्म्स टी प्लस आयोटा ओमेगा अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये सुनो, Yes, sir. हेलो, प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, राइट। सो नाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस एज, ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है विद मल्टीप्लाई बाय माइनस ए है, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। ये सुनो, ये वाली Yes, टर्म sir. आप बाहर ले लेंगे। सो यू लेफ्ट विद इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ई रेस पर माइनस ए टाइम्स टी प्लस आयोटा ओमेगा अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब आपको इसको सोल्व करना है। नाउ इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको पता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस यू स्क्वायर डी इक्वल टू रूट ऑफ पाई। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा गामा बीटा फंक्शन के टाइम पे, गामा एंड बीटा फंक्शन जो आपने पढ़े थे वहां पे हमने ये रिजल्ट सॉल्व किया था। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस यू स्क्वायर डी इक्वल टू रूट ऑफ 2 पाई। सो दिस इंटीग्रल्स लुक्स लाइक दिस वन। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में ये है इसको किसी अदर वेरिएबल के बराबर हम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, सपोज दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो हमारा ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सिंपली कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको ऐसा रहने दीजिए, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा आपका, दैट इज ई की पावर माइनस यू स्क्वायर, और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट बिकम्स डी यू अपॉन रूट ऑफ ए, बिकॉज यहां से यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से डी टी क्या मिलेगा आपको, डी यू अपॉन रूट ऑफ ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, पहले तो स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स टी प्लस आयोटा ओमेगा अपॉन 2a इक्वल टू यू। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन रूट ऑफ ए। ये सुनो, Yes, sir. राइट। सो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। सो इट मींस ये आ जाएगा आपके पास में ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ ए डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 पाई, तो है आपका यहाँ पे, है ना, और यहाँ से 1 अपॉन रूट ऑफ ए अगेन बाहर रहेगा कांस्टेंट, और इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू बन जाएगी रूट ऑफ पाई। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा रूट पाई में, तो आपका पास हो जाएगा ओनली 1 अपॉन रूट ऑफ 2a ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। No, sir. सो आपके लिए ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो दिस रिजल्ट देन इंटीग्रेशन वैल्यू इज वेरी सिंपल। सो नोट डाउन दिस रिजल्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस यू स्क्वायर डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, Yes, sir. and its inverse is equals to the given actual function,
Now, this is very important here. If you put a equals to 1/2, जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है, यहाँ पे a की जगह यदि हम 1/2 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. और सेम इसके फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम a की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। a की जगह 1/2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। यस और नो? यहाँ पे a की जगह 1/2 पुट कर दीजिए आप, तो ये वाला स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी, और यहाँ पे अपॉन में कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। सो इट मीन्स यदि इस फंक्शन का आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है? e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज द एग्जाम्पल। और इस टाइप का जो फंक्शन होता है, जो e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम बोलते हैं गॉसियन फंक्शन। इसकी ब्यूटी क्या है? इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके एक्चुअल फंक्शन के बराबर ही है। इट मीन्स यदि आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, दिस इज द ओनली फंक्शन हुज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू द गिवन एक्चुअल फंक्शन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, sir. राइट। सो ये हमारे पास में इस फंक्शन का नाम क्या है? गॉसियन फंक्शन है ना? और ये हमारा एक इकलौता एक सब फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके एक्चुअल फंक्शन के बराबर होता है। एक्चुअल फंक्शन क्या आपके पास में? e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, और इसका फूरियर भी क्या है? e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? एक्चुअल फंक्शन टाइम का फंक्शन है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका फंक्शन है? फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है ओनली। राइट। सो दिस इज द फंक्शन हुज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। नोट डाउन दिस वन। फाइंड द फूरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी है। डेफिनेशन आपको पता ही है। डेफिनेशन क्या है? दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपके पास में ये है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपके पास में क्या गिवन है? कांस्टेंट फंक्शन है इन द इंटरवल। इसको आप स्टेप फंक्शन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं, u नॉट टी माइनस u ऑफ at टाइम्स k। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। ऐसा हमने यूनिट स्टेप के टाइम पे। राइट। तो इस फंक्शन का आपका फूरियर कोसाइन बनेगा √2/पाई k साइन ए ओमेगा अपन ओमेगा, और इसका साइन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा √2/पाई k 1 माइनस कॉस ए ओमेगा अपन ओमेगा। एंड इसके लिए हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यदि हम यहाँ पे आपकी जो लिमिट्स हैं, ये ए की जगह यदि आप इन्फिनिटी कर देते हैं यहाँ पे, तो ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं कोसाइन और साइन, इनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ दिस वन। सपोज यहाँ पे ए की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो क्या इस इंटीग्रल की वैल्यू आप निकाल पाएंगे? No, बताइए। sir. बिकॉज कॉस ऑफ ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? साइन ऑफ ओमेगा टी विथ सम कांस्टेंट जो भी रहेगा, बट साइन ओमेगा टी इन्फिनिटी पर डिफाइंड नहीं है। सेम केस यहाँ पे है, यदि आपने ए की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑलराइट।
सो इट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसके फूरियर और साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं फॉर द लिमिट्स 0 to a के बीच में। a की वैल्यू इन्फिनिटी होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क हियर। ft equals to k equals to constant for t less than 0 less than infinity transform do not exist। इट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन गिवन है आपका इस इंटरवल में, तो उसका फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो एग्जिस्ट कब करेंगे? जब हमारे पास में टी की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 से किसी फाइनाइट इंटरवल में हो, 0 to a के बीच में, उस केस में आपके फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ऑलराइट, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। फाइंड द फूरियर कोसाइन एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। आपको क्या निकालना है? fc ऑफ ft एंड fs ऑफ ft निकालना है। ये आप निकालिए, ठीक है, और वेरीफाई करना है इसके आंसर किसके इक्वल आ रहे हैं। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है √2/पाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज √2/पाई ओमेगा अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सो जस्ट फाइंड द फूरियर कोसाइन एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन e की पावर माइनस at। ठीक है, सो ये आप इसको ट्राई करना, आंसर नोट कर लीजिए आप ये दोनों। सो थैंक यू फॉर टुडे। Thank you, sir.